Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. Acha beta, the paper which we're gonna begin today is May June's 2023. It's the most recent paper of this year, May June 2023. That is your summer, and variant is 22. So first of all, the things which you need to consider is that the timings of the paper. Previously, it was 1 hour 30 minutes, but from 2023 onwards, the timings have increased a bit. So now it's 1 hour and 45 minutes. So you have to complete the whole paper in 1 hour or 45 minutes. Make sure that you keep a stopwatch with yourselves in order to finish the paper on time. So let's begin the very first question of this paper. That is paper number 22, and definitely the first question, obviously, which is a 30 marker question. Usually this question is either of income statement or a balance sheet or an equity statement. So definitely the first question belongs to limited companies. Fine. Let's read the questions. J Limited's financial year ended on 30th September 2022. The following balances were available on this date. First of all, before going into the depth and before reading the data, the first step which you need to do is read the questions, read the requirement of the question. So if I look at the requirement of the question, it says, prepare the statement of the profit and loss for the year ended 30th September 2022. Use the space provided for your workings, and then obviously you need to prepare the income statement. So that is the first requirement which I should keep it in mind, that I have to prepare the income statement. Now while reading the data, definitely I'll have to keep it in mind that I'm preparing income statement. So definitely I'll work accordingly, keeping in mind that I have to prepare income statement. So the very first thing, obviously it starts with the revenue. Let's see how much do we have. If you look at the data, 8% debentures, administrative expenses, distribution cost, dividends paid, finance cost, inventory at 1st October, issued share capital, non-current assets, cost, provision, purchases, retained earnings, revenue, share premium, and trade receivables. So here we are having the very first figure, that is the revenue thing. So revenue is 869,000. If you look at the additional information, let's see if we are having any sales return or any cash sales that will add on. So additional information says inventory at 30th September 2022 was valued at 57,000. Definitely this is the closing inventory, as the opening inventory is given to us in the question. If you look at the question here, the inventory at 1st of October 2021, that is 54,000. So we have been provided with the opening inventory, and likely we are provided with the closing inventory as well. This will help us in creating our cost of sales. The balances of the account of a credit customer as 3,000 should be written off as an irrecoverable debt and charged to the administrative expense. The directors have agreed to create an allowance for the irrecoverable debts of 5%. And the allowance should also be charged to the administrative expenses. Then we have the debenture interest thing. Then we have the non-current asset depreciation policy, which is like SLM, administrative expenses, and distribution cost. So nothing relevant to sales. So we have to take the similar figure of the sales, that is like 869,000. So let's begin. Okay, the very first thing, obviously we have to write the revenue. So revenue slash sales, right? That is 869,000. Fine. Moving on to the next part. Definitely revenues and sales less cost of goods sold. So cost of goods sold. If you look at the format of the cost of goods sold, it says what? Opening inventory, add purchases less closing inventory. But you need to remember one fact, that you are not making an income statement of a sole trader. यहाँ पे बेटा अगर हम लोग सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट बनाते, तो सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट में डेफिनेटली वी वुड राइट लाइक ओपनिंग इन्वेंट्री, देन वी वुड राइट लाइक परचेजेस एंड देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. सो सोल ट्रेडर में हम ऐसे फॉर्मेट बनाते हैं. बट यहाँ पे जब मैं बना रहा हूँ तो डेफिनेटली आई एम मेकिंग व्हाट, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कंपनीज़ के लिए. सो कंपनीज़ के लिए डेफिनेटली यू नीड टू यूज़ द एक्स्ट्रा स्पेस. एक्स्ट्रा स्पेस में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रोवाइड करें, ताकि हमारी इनकम स्टेटमेंट एज पर स्टैंडर्ड कंपैरिजन फॉर्म के लिए IS 1 के अकॉर्डिंगली हम लोग बना रहे हैं, बिकॉज इट्स अ कंपनी. सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. आई एम कैलकुलेटिंग इट हेयर, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. So cost of goods sold, very easily and quickly, we have to take 2 or 3 figures, that is like opening inventory. So opening inventory, then we need to add purchases, and then we need to subtract the closing inventory.
So let's see what figures do we have. If you look at the figure for the opening inventory is definitely 54,000. I have already highlighted the figures. Opening inventory 54,000 है, purchases 460,000 है, and closing inventory 57,000. So we can make it here as well quickly. हम यहाँ पे बनाते हैं. Opening inventory हमारे पास है 54,000. Then we have to add 460,000 purchases की figure, and then we have to subtract 57,000 which is the figure for the closing inventory. So हमारे पास जो यहाँ पे cost of goods sold आ रहा है opening plus purchases minus closing, that is 457,000. So this is basically our cost of goods sold. So cost of goods sold is 457,000. So sales less cost of goods sold, obviously that's going to give my gross profit. आपके पास बेटा जो gross profit यहाँ पे आ रहा है, that is like 412,000. So here we are done with the very first part, that is the trading section of the income statement. We have found our gross profit. तो बेटा gross profit is 412,000. Then obviously then you need to subtract other expenses. अब यहाँ पे बेटा again चूँकि अगर हम sole trader की बना रहे होते तो sole trader में मैं definitely लिखता other expenses, rent, electricity bills, utilities, depreciation. But as we are making the financial statements of a company, so definitely company का format is a bit shrinked one, right? आपने ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल यहाँ पे नहीं लिखनी, तो यहाँ पे हम लोग मेजर एक्सपेंसेस लिखेंगे. अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस पे कितने गिवन है. यहाँ पे हमारे पास कहता है कि जी वी आर डन विद द वेरी फर्स्ट पार्ट. एक और पॉइंट, जब भी आप ये मार्किंग शुरू कर लें तो डेफिनेटली द पॉइंट्स विच यू आर डन विद आप उसको मार्क किया करें ताकि आपको याद रहे. नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे कहते हैं द बैलेंस ऑन द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट कस्टमर वाज 3,000 शुड बी रिटन ऑफ एज एन इररिकवरेबल एंड चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. तो बेटा आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे पास यहाँ पे हैं 83,000. डू रिमेंबर जब हम यहाँ पे 83,000 है तो जो फिगर हमें गिवन होती है उससे बेसिकली हमारा बैड डेट सब्ट्रैक्टेड नहीं हुआ होता, तो डेफिनेटली हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा यहाँ पे. सो यहाँ पे मेरे पास 3,000 जो है तो 3,000 हमें इस अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना है. क्यों? बिकॉज दैट्स अ बैड डेट. एंड यहाँ पे जो बैड डेट हमारे पास होगा वो बैड डेट कहता है कि जी इट शुड बी चार्ज टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. तो लेट्स सी वर्किंग में हम देखते हैं कि हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस है कितने. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 28,000. सो लेट्स गेट द फिगर फॉर द ट्रायल बैलेंस. अगर हम देखें तो हमारे पास ये वर्किंग की जगह मौजूद है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जी हमारे पास ट्रायल बैलेंस से जो फिगर आ रही है एडमिन एक्सपेंसेस की, दैट इज़ 28,000. इसके साथ हमारा बैड डेट भी ऐड हो जाएगा जिसको हम इररिकवरेबल डेट कहते हैं. सो यू हैव टू ऐड द बैड डेट्स हियर. बैड डेट्स हमारे पास कितना बन रहा है, दैट इज़ लाइक 3,000. बैड डेट हमने ऐड कर लिया. और देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं. ये पार्ट 2 भी हमारे पास हो गया. देन लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड वन. द डायरेक्टर्स हैव एग्रीड टू क्रिएट एन अलाउंस फॉर द इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स. बेटा इसमें एक चीज़ याद रखें, जब भी आपने यहाँ पे अलाउंस क्रिएट करना होता है, ठीक है, बैड डेट का अलाउंस, दैट इज़ लाइक प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स. तो बेटा जो प्रोविजन आपका होता है दैट इज़ ऑब्वियसली एंड ऑलवेज अप्लाइड ऑन द क्लोजिंग रिसीवेबल्स. कहाँ पे? क्लोजिंग रिसीवेबल्स. तो बेटा क्लोजिंग रिसीवेबल्स आपके कौन से होते हैं? क्लोजिंग रिसीवेबल्स ऑब्वियसली वो रिसीवेबल्स विच हैव बीन रिड्यूस्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द बैड डेट्स, यानी वो फिगर जो आपने बैड डेट्स के बाद निकाली हो, दैट इज़ योर क्लोजिंग रिसीवेबल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास था 83,000. सो 83,000 से मैंने यहाँ पे 3,000 जो बैड डेट था वो लेस किया, जो रिमेनिंग मेरे पास रह गया दैट इज़ लाइक 80,000. दिस 80,000 इज टर्म्ड एज माई क्लोजिंग रिसीवेबल. ठीक है, ये क्लोजिंग रिसीवेबल है. इसके ऊपर मैंने अपना लगाना है 5%. सो अगर मैं 80,000 के ऊपर 5% लगाऊंगा दैट्स गोना गिव मी 4,000. सो ये 4,000 बेटा मेरे पास एक और फिगर यहाँ पे आ गई है जो कि मेरे एडमिन एक्सपेंस में ऐड अप हो जाएगी. सो आई हैव टू ऐड दिस 4,000 एज वेल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. नीचे बैड डेट मेरे पास 3,000 है, साथ में मैं जो यहाँ पे अलाउंस है बैड डेट्स का वो अलाउंस भी ऐड कर दूंगा विच इज़ 4,000. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में और क्या क्या फिगर्स आ रही हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट. यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि जी पॉइंट नंबर 3 पे हमारे पास हो गया. अब पॉइंट नंबर 5 पे हम आते हैं. पॉइंट नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, नॉन करंट एसेट शुड बी डेप्रिसिएटेड एट 20% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डेप्रिसिएशन शुड बी एलोकेटेड एज फॉलो. डेप्रिसिएशन आप फाइंड करेंगे जिसका 60% आपका चार्ज होगा किधर, दैट विल गो टू द एडमिन एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन हमारे पास सिंपल कॉस्ट पे है, स्ट्रेट लाइन है, तो 20% हमने स्ट्रेट अभी उसके ऊपर लगा देना है. सो इफ़ वी लुक एट द फिगर तो हमारे पास यहाँ पे नॉन करंट एसेट की फिगर कितनी बन रही है,
नॉन करंट एसेट की फिगर है हमारे पास 1300,000, ठीक है। अब 1300,000 के ऊपर आपने सीधे सीधे यहाँ पे 20% अप्लाई कर देना है। सो 1300,000 का 20%, इफ़ यू कैलकुलेट द फिगर, सो 1300,000 into 0.20 that'll give you 260,000. सो बेटा 260,000 हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ रही है। बट अगेन डेप्रिसिएशन में उसने एक बात की है कि डेप्रिसिएशन का कितने परसेंट वहाँ पे चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन का 60% विल बी चार्ज टू एडमिन एक्सपेंसेस। सो नाउ यू हैव टू फाइंड 60% ऑफ 260,000 विच इज़ अराउंड 156,000। सो बेटा डेप्रिसिएशन 156,000 हमारे पास कहाँ पे चार्ज होगा, एडमिन एक्सपेंसेस में चार्ज होगा। सो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ लाइक 156,000, ठीक है जी। हम पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, पॉलिसी में हमें कहा हुआ है कि जी 156,000 यहाँ पे होगा और जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन होगी दैट विल बी चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विच इज़ 40,000। सो आप देखें कि आपके पास रिमेनिंग डेप्रिसिएशन कितनी बन रही है, 60%। अगर ये बन रहा है तो इसका 40% कितना बन रहा है। सो यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट करते हैं ताकि बाद में हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो 40% इज़ हाउ मच, दैट इज़ 104,000। तो बेटा यहाँ पे हमने 156,000 एडमिन में चार्ज कर लिया और जो आपके पास 40% है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आ गया। सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में भी मैं पहले से लिख लेता हूँ कि हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है 104,000 की। सो इस तरह हमारी डेप्रिसिएशन की वर्किंग भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस के तमाम फिगर्स आ चुके हैं। यहाँ पे हम देखें, विल गिव इट अ नेम, विल कॉल इट एज वर्किंग वन। वर्किंग वन में हमारे पास यहाँ पे 4 फिगर्स हैं, 28,000 प्लस 156 प्लस 3,000 एंड प्लस 4,000। ये फिगर जब हम सबको ऐड अप करेंगे तो मेरे पास जो टोटल फिगर बन रही है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, दैट इज़ 191,000। सो अगेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, सो द इनकम स्टेटमेंट हैज़ टू बी अ श्रिंक्ड वन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो बेटा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपका कितना बन रहा है, अगेन वर्किंग वन इज़ द रेफरेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपका बन रहा है ऑलमोस्ट 191,000। सो आई एम डन विद द एडमिन एक्सपेंसेस। अब दूसरे को देखते हैं हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है। इफ़ यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी मैं एक फिगर ऐड कर चुका हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट द ट्रायल बैलेंस के ट्रायल बैलेंस से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आ रही है। सो जी ट्रायल बैलेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो आ रही है दैट इज़ बेसिकली लेट्स हैव अ लुक जी 57,000 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है जो कि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी हमें गिवन है यहाँ पे। व्हाट एल्स डू वी हैव इन द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में और क्या क्या चीज़ें आएंगी बेटा, इसको ज़रा गौर से देखें। अगेन इसके लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर वर्किंग। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जब आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, आपको टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है, आप यहाँ पे जल्दी मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिन एक्सपेंसेस हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे एडमिन में कुछ भी नहीं करना। अब हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साथ में अपना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की जो है फाइंडिंग करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे एक आ गया है 104,000 एंड ऊपर की फिगर है 57,000। सो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में हमारे पास इट्स इजी, इट्स लाइक 57,000 प्लस 104,000, टोटल मिला के हमारे पास बनता है 161,000। सो बेटा यहाँ पे हमारे पास वर्किंग टू का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो आ रही है दैट इज़ 161,000। सो वी आर डन विद दिस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज वेल। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। सो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ 161,000। सो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी मेरे पास यहाँ पे हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट लेस अदर एक्सपेंसेस और कोई नहीं है। सो फाइनली वी हैव फाउंड आवर व्हाट, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, जैसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास यहाँ पे आ गया, जैसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जी, दैट इज़ 60,000। सो फाइनली 60,000 भी हमारे पास आ गए फिगर। तो हमारा यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सेक्शन है, वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ फाइनली अगेन डू रिमेंबर वी आर मेकिंग एन इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, सो डेफिनेटली अब बीच में फाइनेंस कॉस्ट भी आएगी। सो नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द फाइनेंस कॉस्ट एज वेल। फाइनेंस कॉस्ट में यूजुअली वी हैविंग अ कन्फ्यूजन, अक्सर एक कन्फ्यूजन होती है जो कि आप लोगों को ठीक ठाक फिगर आप लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं बट ऑल ऑफ अ सडन यू गाइस डेविएट। कैसे?
गौर से देखें, फाइनेंस कॉस्ट के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी हमें कहा गया है कि जी फाइनेंस कॉस्ट कुछ ऑलरेडी पेड है. दिस इज द फाइनेंस कॉस्ट विच हैज़ ऑलरेडी बीन पेड 4,000. मोस्टली स्टूडेंट्स जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये पे कि सर हमें फाइनेंस कॉस्ट ऑलरेडी दी गई है 4,000 एंड यहाँ पे जो फिगर है फाइनेंस कॉस्ट की वो क्या कह रहा है, डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज आउटस्टैंडिंग. मतलब ये बेटा कि आपको जो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट दी गई है, ये फाइनेंस कॉस्ट जो आपकी है दैट इज हाफ. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो डिबेंचर मैंने कितने का लिया है, डिबेंचर इज 100,000. डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है दैट इज 8%. अब कॉमन सेंस की बात है कि हम अकाउंट पेड पे नहीं बनाते. ये जो फाइनेंस कॉस्ट है यूजुअली जो आपको गिवन होती है ये वो अमाउंट होती है जो हमारी पेड होती है. सो डेफिनेटली हम अकाउंट्स कैश बेसिस पे नहीं बना रहे, हम एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं. चूंकि एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक द होल एक्सपेंस फॉर द ईयर. सो अगर मैं फॉर द ईयर देखूँ दैट बिकम्स 8,000. तो 8,000 पूरे साल का है जिसमें से वो कह रहा है कि जी हाफ ऑफ इट हैज़ बीन पेड. तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको इग्नोर करोगे कि जी हाफ पे हुआ है या आधा पे हुआ है, आपने फुल चार्ज करना है इनकम स्टेटमेंट में. सो फाइनेंस कॉस्ट इज डेफिनेटली 8,000 एंड वी हैव टू चार्ज दिस कॉस्ट फुली इन द इनकम स्टेटमेंट. फाइनेंस कॉस्ट इज 8,000. ठीक है. तो हमारे पास अब जो फाइनल रह गया है, द फाइनल लेफ्ट ओवर इज द फाइनल प्रॉफिट फॉर द ईयर. द फाइनल प्रॉफिट फॉर द ईयर, the final profit for the year would be 52,000. So done. Here we are done with the first 11 marker जो हमारे पास यहाँ पे income statement थी. We are done with the income statement. Quickly moving on to part B of the question. Part B हमारे पास क्या कह रहा है? The directors found that the following transactions had not been recorded in the books of account. On 30th September 2022, the directors had made a bonus issue of 2 ordinary shares for every 3 held. 2 ordinary shares for every 3 held. मतलब यहाँ पे ये है कि हर एग्जिस्टिंग 3 ordinary shares के अगेंस्ट आपको 2 बोनस इशू करने पड़ेंगे. The directors had decided to maintain the reserves in the most flexible form. अच्छा बेटा, most flexible form का यहाँ पे डेफिनेटली मतलब ये होता है कि you have to use all the reserve. Typical जो रूल मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई होती है, that is we have to follow the rule left to right. ठीक है. अगर आपके ज़हन में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो हम जब इक्विटी स्टेटमेंट बनाते हैं, जस्ट टू गाइड यू, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं शेयर कैपिटल, देन वी राइट शेयर प्रीमियम, देन वी राइट रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड देन वी राइट द रिटेन अर्निंग्स और जर्नल रिजर्व्स. ठीक है, जर्नल रिजर्व्स. तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का रूल ये है कि जी पहले आपने देखना है कि इफ़ यू हैविंग एनी मनी इन द शेयर प्रीमियम तो आप शेयर प्रीमियम अकाउंट से डिडक्ट करें, देन रीवैल्यूएशन एंड जनरल रिजर्व. सो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली हमारे पास रीवैल्यूएशन नहीं है, सो वी हैव टू सी डू वी हैव एनी मनी इन शेयर प्रीमियम. अगर शेयर प्रीमियम है तो यहाँ से डिडक्ट करेंगे, यहाँ पे नहीं है तो फिर हम आगे मूव करेंगे साथ में. सो लेट्स सी, पहले कैलकुलेट करते हैं कि हमारा बोनस इशू बनता कितना है. ठीक है. सो बोनस इशू के लिए डेफिनेटली वी नीड नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे हैं, कैलकुलेटेड हो चुके हैं. जो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल कितना है, दैट इज लाइक 420,000 एट द रेट ऑफ 0.5. द 0.5 इज एक्चुअली द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. ठीक है, ये शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है यहाँ पे. अब बेटा डेफिनेटली नॉमिनल वैल्यू पे तो हम कभी भी नहीं इशू करते. अब नॉमिनल वैल्यू है तो इस नॉमिनल वैल्यू से हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स के बाद फिर हम यहाँ पे आगे कहानी करेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट द कैलकुलेशंस ओवर हियर. के कैलकुलेशंस आपके पास क्या कह रही हैं यहाँ पे, क्विकली ज़रा देखते हैं जी. हमारे पास जो शेयर कैपिटल ऑलरेडी अवेलेबल था देयर वाज $420,000. इफ़ यू डिवाइडेड बाय अ नॉमिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.5. सो डेफिनेटली डॉलर जब डॉलर पे डिवाइड होता है तो डेफिनेटली आपके पास जो वैल्यू आती है वो दूसरे यूनिट्स में आती है. तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, बेटा वो नंबर ऑफ शेयर्स आपके जो आ रहे हैं दैट इज़ लाइक 420,000 डिवाइड बाय 0.5, दैट्स गोना गिव यू 840,000. So बेटा 840,000 are the existing number of shares which have been issued. तो ये issued share capital है हमारे पास. अब बोनस हमारे पास क्या है, बोनस हमारे पास है it's like 2/3. सो बेटा इन सिंपल जब भी आपके पास ऐसी कैलकुलेशन हो, whenever you having this figure, तो आपके पास जो शेयर कैपिटल या नंबर ऑफ शेयर्स हैं ओरिजिनल शेयर कैपिटल के, मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइडेड विद 3. सो बेटा इसको अगर आप 2/3 करेंगे तो आपके पास जो यहाँ से आंसर आएगा that is 560,000 shares. तो बेटा ये 560,000 आपका बोनस शेयर्स हैं. ठीक है, बोनस शेयर्स. डेफिनेटली हम बोनस शेयर्स तो नहीं लिखेंगे, हम बोनस शेयर्स की वैल्यू लिखेंगे. सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोनस शेयर्स, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद व्हाट, विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर.
तो बेटा आपके शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 0.5. तो 560,000 into 0.5 that's gonna give you the bonus in terms of what? Dollar terms. तो 560,000 into 0.5 that's gonna give you a bonus issue of 200 and wait, just give me a second, let me write it correctly. जी आपको यहाँ पे ये दे रहा है $280,000. $280,000 is basically your bonus amount. So bonus is actually 280,000. Now it says as you have to maintain the reserves in the most flexible form. तो बेटा फ्लेक्सिबल फॉर्म का क्या मतलब है? पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में, इफ़ यू हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन में यहाँ पे क्विकली देखते हैं कि हमारे पास रिजर्व्स की क्या पोजीशन है। शेयर प्रीमियम में हमारे पास कितना है? मैंने आपको पहले बताया था। शेयर प्रीमियम में येस वी हैव इनफ मनी, दैट इज़ लाइक 210,000। फिर हम देखेंगे हमारे पास दूसरा रिजर्व यहाँ पे कौन सा यूज़ हो सकता है। जी शेयर प्रीमियम के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजर्व रह गया दैट इज़ ऑब्वियसली द रिटेन अर्निंग्स। सो वी जस्ट हैव टू यूज़ 2 रिजर्व्स। तो 210,000 हमारे पास शेयर प्रीमियम में है और 125,000 हमारे पास यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स में है। तो बेटा हमने बोनस कितने का इशू करना था? बोनस अभी हमने फिगर कैलकुलेट की। बोनस की जो टोटल अमाउंट थी, द टोटल अमाउंट ऑफ द बोनस इशू वाज 280,000। सो 280,000 में हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? वी हैव टू यूटिलाइज द शेयर प्रीमियम अकाउंट इन फुल। लेट मी राइट इट डिफरेंटली। 210,000 एंड यहाँ पे हमारे पास जो रिटेन अर्निंग्स है 125,000। सो पहले मैं ये फिगर्स यहाँ पे लिखता हूँ जी फ्लेक्सिबल फॉर्म में। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे शेयर प्रीमियम जो अवेलेबल है, द अवेलेबल शेयर प्रीमियम दैट इज़ शेयर प्रीमियम मेरे पास अवेलेबल है 210,000 एंड जो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट रिजर्व अवेलेबल है दैट इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स। आई रिमेंबर द फिगर नाउ एंड दैट इज़ 125,000। तो बेटा बोनस का हमने जो फिगर एडजस्ट करनी है टोटल वो 280,000 है। सो डेफिनेटली आई हैव टू यूटिलाइज फुल शेयर प्रीमियम। 210,000 मैंने यहाँ पे डिडक्ट कर लिया, ठीक है, तो शेयर प्रीमियम बिकम्स 0। सो 280 माइनस 210,000, सो वी हैव ऑलरेडी एडजस्टेड द फिगर फॉर शेयर प्रीमियम। लाइक 280,000 थे तो इसमें से 210,000 हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं अगेंस्ट व्हाट? शेयर प्रीमियम। एंड रिमेनिंग कितना रह गया हमारे पास? 70,000। तो बेटा ये 70,000 हम किस रिजर्व से लेके जाएंगे? ये हम रिटेन अर्निंग से लेस करेंगे, दैट इज 70,000। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स में जो यहाँ पे आएगा अराउंड 55,000 आपके पास तकरीबन आ जाएगा, ठीक है। सो ये बोनस हमारा एडजस्ट हो गया, रिटेन अर्निंग से भी हमने ये अमाउंट लेस कर ली। सो इफ़ यू लुक एट द फिगर और द एडजस्टमेंट्स ऑफ द बोनस इशू, तो बोनस इशू हमने एडजस्ट कर लिया, हमने बोनस फाइंड कर लिया। बोनस वाज 280,000, एडजस्टमेंट उसकी कैसे हो गई? शेयर प्रीमियम से हमने 210,000 एडजस्ट किया और उसके बाद जो है हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया था 70,000 वो रिटेन अर्निंग से रिजेक्ट किया हमने, ठीक है। सो वी आर डन विद द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास और कुछ नहीं है, लेकिन पार्ट बी में आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें। पार्ट बी में हमारे पास जो फाइनल वर्किंग आपसे कह रहा है, यू नीड टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑन द रिटेन्ड अर्निंग्स एट 30 सितंबर। मतलब ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स पे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। अब बेटा क्लोजिंग बैलेंस कैसे? एडजस्टमेंट तो मैंने यहाँ पे आपको शो करा ली, दैट वाज जस्ट अ वर्किंग। एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे देख ली। अब फाइनल एक फॉर्मेट बनाते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्मेट को ज़रा देखिएगा ताकि मैं फाइनल फॉर्मेट बना दूँ। आई यूज़ अ डिफरेंट कलर स्लाइटली, लेट मी यूज़, चलें, we'll keep the same color. Okay, so as we're done with the workings of the bonus issue, now finally I'm drawing a line over here so that we could have a bit neat format for the final working. So the balance on the retained earnings, that is the closing balance on the retained earnings. So definitely retained earnings हमारे पास जो है, अभी मैंने यहाँ पे फिगर लिखी थी, हमारे पास opening retained earnings कितना था as per question? Opening retained earnings. The opening retained earnings given to us in the question was 125,000. अभी हमने ऊपर से फिगर ली थी ट्रायल बैलेंस से। Then we have to add back profit for the year. तो प्रॉफिट साथ में ऐड अप कर देते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास कितना आ रहा है? इफ़ यू लुक एट द फिगर फॉर द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 52,000। तो बेटा यहाँ पे साथ में हमने 52,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड अप कर लेना है, फाइन। देन ऑब्वियसली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जी हमने कुछ डिविडेंड्स भी पे किए हैं यहाँ पे, तो डिविडेंड्स पे करना भी रिटेन्ड अर्निंग से ही होता है। सो नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सम डिविडेंड्स एज वेल। सो डिविडेंड्स भी पेमेंट आपने यहीं से सब्ट्रैक्ट करनी है एंड द अमाउंट वाज 21,000।
सो डिविडेंड्स पेमेंट भी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड हो गई। देन रिटेन अर्निंग्स से एक और चीज़, ये वाली अमाउंट, दिस रिटेन अर्निंग्स, द बोनस इशू भी यहाँ से सब्ट्रैक्ट होना है। सो अब यहाँ से मैंने बोनस भी लेस करना है। बोनस इशू कितना है? 70,000। तो बेटा आपके पास फाइनल जो यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स में फिगर आ रही है, द क्लोजिंग बैलेंस ऑन द रिटेन अर्निंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज there is 125 plus 52 minus 21 at 70, or sorry subtract 70, because obviously रिटेन अर्निंग्स पे हमारे पास ओपनिंग 125 था, प्रॉफिट फॉर द ईयर 52 का साथ में हमने ऐडअप कर लिया, उससे फिर हमने डिविडेंड्स लेस किए, देन हमने बोनस लेस किया, तो जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास रह गया दैट इज 86,000। सो बेटा दिस 86,000 इज द फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑन द रिटेन अर्निंग्स। बेटा मैंने यहाँ पे डिटेल्ड वर्किंग की है ताकि आपको पहले कैलकुलेशन समझ आ जाए और थोड़ा सा मैं ये फ्लेक्सिबल फॉर्म को एक्सप्लेन कर सकूं। डेफिनेटली जब आप यहाँ पे करेंगे तो आप वर्किंग सेपरेटली करेंगे और आपको मेजर पोर्शन जो यहाँ पे छोड़ना है वो आपने अपने क्लोजिंग बैलेंसेस को यहाँ पे डिसाइड करना है, ठीक है। देन moving on to the next part, that is obviously a one marker question. That one marker is, state one reason why the directors of a company might decide to make a bonus issue. By the way, there could be number of issues, right? Number of ideas or number of reasons why a director of a company might decide to have a bonus issue. Obviously, the first reason is the liquidity problems, right? We might be having insufficient fund. So if you're having a liquidity problem over here, definitely that can cause a delay in the cash flow, and definitely in order to satisfy the shareholders or to reward the shareholders or the existing shareholders, you need to issue some shares in bonus. And obviously beta jo bonus shares hote hain, that doesn't include the cash outflow. So definitely as you are in a liquidity problem, usually the companies do have this problem, or in order to avoid the liquidity problem को avoid करने के लिए वो वहाँ पे bonus issue करते हैं। Why? just because क्योंकि उनके पास sufficient cash रहे। So definitely you have to write it here in a full statement form कि आपके पास shareholders को satisfy करने के लिए liquidity problem and definitely in order to satisfy the shareholders. So बेटा it's not that कि ये different points हैं, it's a single sentence। डेफिनेटली मैं यहाँ पे कॉमा से इसको सेपरेट कर रहा हूँ। सो लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा है। पार्ट डी में अगर हम आते हैं, पार्ट डी, explain one reason why the trade payables and the potential lenders might approve a company making a bonus issue. So बेटा अगेन यहाँ पे हमारे पास बोनस इशू की कहानी बड़ी सिंपली यहाँ पे आती है। Definitely a bonus issue is a non-cash item, ठीक है। So the first reason which we have is definitely it's a non-cash item. So बेटा as it's a non-cash item, so obviously it will have no effect on the repayment of our liabilities. मतलब वो क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है, explain one reason why the trade payables and potential lenders might approve a company's bonus issue. So बेटा who are trade payables? Obviously are creditors, ठीक है। अब क्रेडिटर्स का हमारे पास यहाँ पे क्या कंसर्न होगा, उसका हमारे बोनस के साथ क्या कंसर्न होगा? डेफिनेटली कंसर्न है। अगर मैं बोनस इशू नहीं करता तो आई विल बी पेइंग ऑब्वियसली इन कैश, फिर मैं कैश में दूंगा। अगर मैं कैश में दूंगा और मेरी लिक्विडिटी पे यहाँ पे इफेक्ट आया तो देन ऑब्वियसली मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट पूरी कर सकूं। सो ऑब्वियसली एवरी क्रेडिटर इज़ मच मोर कंसर्न, क्रेडिटर्स कंसर्न होते हैं इस बारे में कि क्या कंपनी हमें पैसे दे पाएगी कि नहीं। सो इस सिचुएशन में आपके क्रेडिटर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे, दे विल बी सेटिस्फाइड। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर जस्ट इशूइंग अ बोनस शेयर दैट डजंट इंक्लूड एनी कैश मूवमेंट, एंड सो द क्रेडिटर्स वुड बी सेटिस्फाइड दैट यू विल बी हैविंग इनफ कैश टू पे द क्रेडिटर्स। तो इट्स जस्ट द रीज़न कि आपके क्रेडिटर्स यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल उनका हाई होगा। वाई? उनको अपने डेट्स टाइम पे मिल जाएंगे क्योंकि आपकी कैश मूवमेंट नहीं हो रही। सो डेफिनेटली यू हैव टू राइट द फुल सेंटेंस हेयर। ऑब्वियसली वी आर हैविंग नंबर ऑफ ऑप्शंस ओवर हेयर, सो यहाँ पे बेसिक सेंटेंस आपने मेंटेन करना है। नाउ अब ज़रा मूव करते हैं यहाँ पे सबसे इसका, बल्कि एक नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है, पॉइंट नंबर ई एंड एफ। विल बी डूइंग दिस पॉइंट नंबर ई एंड एफ